بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی لمبی بیماری سے اٹھے تھے۔ ان پر یہ الزام بھی لگ گیا تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کے دلوں سے یہ الزام صاف کر دیا تھا، لیکن ایک خلش سی تھی جو حضرت سعد کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ اس وجہ سے وہ کوئی مفوق الفطرت کارنامہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں شامل نہ ہونے کا جو صدمہ انہیں تھا، اسے بھی دل سے اتارنا ضروری تھا، جس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد پر غالب آ جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قلیل تعداد کو اس طرح منظم کیا کہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں اور مجاہدین ان کے کنٹرول میں بھی رہیں۔ انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آمنے سامنے ٹکر لینے کے بجائے دائیں بائیں سے حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑتے ہوئے فارسی فوج کا یہ حال کر دیا کہ وہ بکھر گئی اور فیروزان کے قبضے سے نکل گئی۔ بکھرتے بکھرتے فارس کے یہ فوجی دور دور تک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور مجاہدین نے انہیں بہت جانی نقصان پہنچایا۔ فیروزان کا پرچم جب تک نظر آتا رہا، اس وقت تک فارسی مقابلہ کرتے رہے۔ ان کے مقابلے کا انداز جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی تھا، وہ جانیں بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اچانک فیروزان کا پرچم غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیروزان مارا گیا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے نہاوند میں جا پناہ لی ہے۔ اس کے فوجیوں نے جو مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے بچ گئے تھے، ہتھیار ڈال دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہیرا چلے گئے۔ برس شہر سے کچھ دور زہرہ بن حویہ نے فارسیوں کے کچھ دستوں کو بہت بری شکست دی، تو ان بچے کچے فارسیوں میں سے زیادہ تو بابل کی طرف چلے گئے اور کچھ برس شہر میں جا پہنچے۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروزان کو پسپا کیا تو فارس کی فوج کے دستوں میں سے بھی زیادہ تر بابل کو بھاگ گئے اور کچھ برس شہر میں جا پہنچے۔ برس کے شہریوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی فوج قادسیہ کی جنگ ہار کر بری طرح ماری گئی ہے اور ہزارہ سپاہی دریائے عتیق میں ڈوب گئے ہیں اور ہاتھی بھی مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر دریا میں کود گئے ہیں۔ تو ان شہریوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے، ان میں کچھ زخمی بھی تھے۔ انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بزدل اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ گئے ہیں، بلکہ شہریوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ فحشی اور خونخوار بھی ہیں۔ اس شہر کا رئیس یا امیر بسطام تھا۔ یہ آتش پرست اتنا زیادہ امیر کبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا خزانہ دفن تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا؟ فارس کی تمام فوج باہر تھی اور باہر جس کیفیت میں تھی وہ بیان ہو چکی ہے۔ بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہر کو مسلمانوں سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے لیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے باہر شور و گل سنائی دیا۔ وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے باہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہوں، لیکن باہر شہر کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے تھے اور وہ بازو لہرا لہرا کر واویلا بپا کر رہے تھے۔ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، مسلمانوں کا استقبال کرو، انہیں شہر میں آنے دو، ہماری عزتیں اور جان و مال بچاؤ، ہماری فوج ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ شہریوں کے یہ مطالبے، یہ نعرے اور یہ واویلا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عورتیں مردوں سے آگے آ کر بسطام سے کہہ رہی تھیں، ہمیں کہاں چھپاؤ گے؟ کیا ہمیں عربوں کے حوالے کر دو گے؟ نہیں۔ بسطام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بسطام کہہ رہا تھا، میں تمہارے ہی فیصلے کا منتظر تھا۔ تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا کہ ہماری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے، اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ ہمارا بادشاہ محل میں بیٹھا عیش کر رہا ہے۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا، پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہانہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے 6 گھوڑ سوار تھے اور ان کے پیچھے 4-5 خچر تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ شاہانہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا
کہ اس کا एक घुटना जमीन पर था और उसने हाथ अपने सीने पर रखा और सर झुका लिया। खुदा की कसम, ये शख्स मेरे दीन की तौहीन कर रहा है। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तर्जमान से कहा, इसे कहो खड़ा हो जाए। मैं फारस का बादशाह नहीं हूँ कि लोग मेरे सामने झुक कर इस तरह आदाब बजा लाएं। इसे बताओ कि हम जो मजहब तुम्हारे लिए अपने साथ लाए हैं उसमें अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के किसी बंदे को अपने आगे नहीं झुका सकता, और इससे पूछो कि ये क्यों आया है। तर्जमान ने उस शख्स को ये सारी बात जो साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कही थी उसकी ज़ुबान में समझाई। उस शख्स ने तर्जमान के ज़रिए अपना तारुफ करवाया और आने का मुद्दा बयान किया। मेरा नाम बस्ताम है, उसने कहा। मैं बुरस का अमीर हूँ और मैं सुलह करने के इरादे से आया हूँ। मेरे शहर के लोग भी सुलह चाहते हैं। मैं कुछ तोहफे लाया हूँ और सिर्फ ये शर्त पेश करता हूँ कि हमारी इज्जतें और जानो माल महफूज रहें। मैं इसके इवज़ आपकी पेशकदमी को बहुत ही आसान बना दूंगा। शहर के लोग आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। हम तोहफे नहीं लिया करते। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम जानते हैं कि इस शहर के लोगों की हिफाजत के लिए फौज मौजूद नहीं। तुमने हमसे पनाह मांगी है तो हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को पनाह देंगे। वापस जाओ और लोगों से कहो कि वो अमन और इत्मीनान से रहें। बस्ताम अपने तोहफे लेकर चला गया। वो इलाका जिसमें मुसलमान मुख्तलिफ सिमतों से मदाइन की तरफ पेशकदमी कर रहे थे सरसब्ज़ो शादाब इलाका था, लेकिन खासा इलाका बंजर वीरान और सतह मुर्तफ़ा था। नदी नाले भी थे और गहरे नशेब भी थे, खड और खाइयाँ भी थीं। ऐसी ज़मीन पर पेशकदमी के रास्ते लंबे हो जाते थे। मुअर्रखों ने लिखा है कि बस्ताम शहर के लोगों को बाहर ले आया और उसने बड़ी तेज़ी से नदी नालों पर लकड़ी के पुल बना दिए और कई कुदरती रुकावटें हटा दी। मुसलमानों को अपने रहबर भी दिए और उनकी दीगर ज़रूरियात भी पूरी की। उन इंतज़ामात ने मुजाहिदीन की पेशकदमी आसान कर दी। ज़हरा बिन हवैया एक और सिमत से पेशकदमी कर रहे थे। उनके रास्ते में कूसा नाम का एक शहर आता था। बस्ताम के दिए हुए रहनुमाओं ने ज़हरा बिन हवैया को बताया कि कूसा में कुछ फ़ौज मौजूद है और बहुत से भागे हुए फ़ौजी भी वहाँ जमा हो गए हैं। उस मुखबर ने यह भी बताया कि उस शहर का रईस शहरयार है जो फ़ौज का जर्नैल भी है और वो जज्बे वाला भी है। क्या शहरयार हमारा रास्ता रोकेगा? ज़हरा ने पूछा। ज़रूर रोकेगा, गाइड ने जवाब दिया। मैं अपने एक साथी के साथ कूसा से आया हूँ। उसने फ़ौज को और शहरियों को भी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। उसकी तैयारियों का अंदाज बताता है कि वो शहर से बाहर आकर लड़ेगा। उसने फ़ौजियों और शहरियों को बहुत गरमाया हुआ है और कहा है कि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है और वो 4 दिनों की लड़ाई और ताक़ुब से इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं रही। वो यही समझता है कि आपके आदमी बहुत थक गए हैं, इसलिए वो बाहर खुले मैदान की लड़ाई की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। ज़हरा बिन हवैया ने अपने मुजाहिदीन को बता दिया कि कूसा के करीब दो बदू लड़ाई का खतरा है। उसने मुजाहिदीन को तरतीब में कर लिया और बढ़ते चले गए। कूसा से अभी कुछ दूर ही थे तो ज़हरा ने देखा कि शहर के बाहर खुले मैदान में फारस की फ़ौज लड़ाई की तरतीब में खड़ी है। फ़ौज की तादाद बहुत थोड़ी थी और मुजाहिदीन में बहरहाल ये कमज़ोरी भी थी कि वो थके हुए थे। वो तो अब ईमान और जज्बे की कुव्वत पर भरोसा किए हुए थे। दोनों फरीक आमने सामने आ गए। शहरयार अपने लश्कर के आगे घोड़े पर सवार था। उसकी जिसामत उस ज़माने के पहलवानों जैसी थी। वो कवि हैकल आदमी था। साफ पता चलता था कि वो किसी हथियार के बगैर भी लड़े तो अपने हरीफ को गिरा सकता है। अरब के बदबख्तों, शहरयार ने ललकार कर कहा, तुम्हें मौत अजम के मुकाबले में कहाँ ले आई है? रुस्तम बुज़दिल था जो मारा गया। यहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि अपनी जानें सही सलामत लेकर वापस चले जाओ? इसका फैसला तलवार करेगी। ज़हरा बिन हवैया ने शहरयार की ललकार का जवाब दिया। कौन अपनी जान लेकर या गंवाकर यहाँ से जाता है, इसका फैसला अल्लाह के हाथ में है, जिसके दीन को हम अपने सीनों में लेकर तुम्हारे मुल्क में आए हैं। इसका फैसला मेरे हाथ में है। शहरयार ने बड़ी बुलंद और रौनक अमेज आवाज़ में कहा, तेरे अल्लाह को यहाँ कौन पहचानता है? तुम सब को लाशों में तब्दील करने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ खेल तमाशा करना चाहता हूँ। क्या तुम में कोई ऐसा बहादुर है जो मेरे मुकाबले में आए? तेरे मुकाबले के लिए मैंने खुद आगे होना था, ज़हरा बिन हवैया ने कहा, लेकिन ए बदकिस्मत आतिश परस्त, तूने मेरे अल्लाह को ललकारा है। मैं तेरे मुकाबले में एक गुलाम को आगे करता हूँ। अल्लामा शिबली नुमानी ने तारीख़ तिबरी और अल्लामा बलादरी के हवाले से लिखा है कि ज़हरा बिन हवैया ने एक खतरा मोल लिया था कि शहरयार जैसे दियोहेकल पहलवान के मुकाबले में जिस मुजाहिद को आगे भेजा वो एक दुबला पतला और बज़ाहिर कमज़ोर सा आदमी था।
वो बनु तमीम का एक गुलाम था जिसका नाम नाबल था। नाबल घोड़े पर सवार शहरयार की तरफ बढ़ा तो शहरयार ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया। ज़हरा बिन हवैया को नाबल पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा था और ये उसका अकीदा और यकीन था कि अल्लाह इस कमज़ोर से आदमी की मदद को आएगा। लेकिन ज़ाहरी तौर पर उस मुकाबले का अंजाम साफ तौर पर नजर आ रहा था और फारस की फौज से कहकहे बुलंद हो रहे थे। शहरयार ने जब नाबल को देखा तो वो यही समझा होगा कि मुसलमानों ने उसके साथ मजाक किया है। वो घोड़े से उतरा, उसके हाथ में बर्छी थी जो उसने फेंक दी। नहत्ता होकर लड़ने से वो ये साबित करना चाहता था कि इस कमजोर से आदमी को तो वो खाली हाथ मार डालेगा। नाबल भी घोड़े से उतर आया, उसके पास तलवार थी। शहरयार ने अपनी बर्छी अलग फेंक दी तो नाबल ने भी अपनी तलवार फेंक दी। अचानक शहरयार नाबल पर झपटा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। नाबल पीठ के बल गिरा, अभी उठने ही लगा था कि शहरयार उसके सीने पर बैठ गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना कमजोर आदमी ऐसे कवि हैकल आदमी के वजन के नीचे से निकल आएगा। लेकिन शहरयार का एक हाथ नाबल के मुंह की तरफ चला गया। नाबल ने उसका अंगूठा अपने मुंह में लेकर इतनी ज्यादा जोर से काटा कि शहरयार तलमला उठा और अपना अंगूठा छुड़ाने के लिए एक पहलू पर कुछ ज्यादा ही झुक गया। नाबल ने जिस्म की पूरी ताकत सरफ करके शहरयार को उसी पहलू पर गिरा दिया और उसका अंगूठा दांतों में दबाए रखा। नाबल की तलवार करीब ही जमीन पर पड़ी थी। उसने टांग लंबी करके तलवार पांव से अपनी तरफ कर ली और बड़ी तेजी से तलवार उठाकर शहरयार के पेट और सीने के दरमियान बर्छी की तरह उतार दी और उठ खड़ा हुआ। तलवार खींचकर उसी तेजी से तलवार का वार किया और शहरयार का पेट चाक कर दिया। उसके बाद शहरयार तड़पने के सिवा और कुछ न कर सका। मुसलमानों की तरफ से दादो तहसीन के नारे और तकबीर के नारे बुलंद होने लगे। फारस की फौज और शहरियों पर सन्नाटा तारी हो गया। नाबल शहरयार को तड़पता और फिर मरते देखता रहा। जब शहरयार मर गया तो नाबल ने उसकी कमर से बंधी हुई तलवार और न्याम खोली। ये बड़ी ही कीमती तलवार थी। उसके दस्ते में हीरे और बड़े कीमती पत्थर जड़े हुए थे। शहरयार का लिबास जो शाहाना था, बहुत ही कीमती कपड़े का था। उसकी होद भी कीमती थी। नाबल ने उसके कपड़े उतार लिए और उसकी हर चीज, हथियार और बर्छी उसी के घोड़े पर रखकर उसके घोड़े को पकड़ लाया और ये तमाम तर माले गनीमत अपने सालार ज़हरा बिन हविया के आगे पेश कर दिया। शहरयार के लश्कर ने जब ये देखा कि इतने दुबले पतले और कमजोर से आदमी ने उनके कवि हैकल जरनैल को कितनी आसानी से कत्ल कर दिया है तो उनमें बेचैनी पैदा हो गई। उस लश्कर में कादसिया से भागे हुए फौजी भी थे। वो एक बार फिर भाग उठे, लेकिन जो जरा अकल वाले थे उन्होंने आगे आकर हथियार डाल दिए। कूसा शहर के लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने शहर के बड़े आदमियों का एक वफ्द ज़हरा बिन हवैया के पास भेजा। उस वफ्द ने कहा कि मुसलमान शहर में आकर कब्जा कर लें और शहर के लोग जिजिया देंगे। मोहम्मद हसनैन हैकल ने लिखा है कि शहर के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ज़हरा बिन हवैया को मालूम था कि इस वक्त साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ है। उसने साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेजा कि कूसा उनके कब्जे में आ गया है। शहरयार और नाबल के मुकाबले की तफसील भी उन्होंने लिखी और पूछा कि नाबल ने शहरयार की लाश से जो अशिया उठाई हैं उनका क्या किया जाए। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह जवाब भेजा कि वो अशिया खा कितनी ही कीमती क्यों ना हो, वो सब नाबल को दे दी जाए। ये सब नाबल का हक है। इसके अलावा साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़हरा को यह हुक्म भेजा कि वो हाशिम बिन उतबा को साथ लेकर मदाइन की तरफ पेशकदमी करें। ज़हरा बिन हवैया और हाशिम बिन उतबा अपने थके मांदे मुजाहिदीन को साथ लेकर मदाइन की तरफ बढ़े। मदाइन से पहले एक बड़ा शहर साबात आता था। साबात के बिल्कुल करीब एक और मकाम था जिसका नाम बहर शेर था। साबात में वो शाही रसाला था जिसका जिक्र कुरान ने यज़्दगर से किया था। ये 2000 घोड़सवारों का रसाला था जिसे शाही रसाला भी कहा जाता था और पुरान बिनते किसरा का रसाला भी कहा जाता था। उस रसाले के सवार हर सुबह इकट्ठे होकर बुलंद आवाज से ये अहद करते थे कि जब तक ये रसाला मौजूद है फारस की सुल्तनत को जवाल नहीं आने देगा और फारस की अजमत को हमेशा जिंदा व तबिंदा रखेगा। उस रसाले के साथ एक शेर भी था जो रसाले के हर सवार के साथ तो मानूस था, लेकिन दुश्मन के लिए वो वैसा ही शेर था जैसे जंगल का शेर होता है। बाद मौरखों ने लिखा है कि उस शेर की मुनासबत से ही उस मुकाम को बहर शेर कहा जाता था। मुजाहिदीन जब साबात के करीब पहुंचे तो उस जांबाज रसाले को अपने मुकाबले के लिए तैयार पाया। जब मुजाहिदीन करीब पहुंचे तो आतिश परस्तों ने शेर का मुंह मुजाहिदीन की तरफ करके छोड़ दिया। मुजाहिदीन के लिए लड़ाई में शेर का शामिल होना अनोखी सी बात थी और बहुत ही खतरनाक। शेर से इंसान तो डरता ही है, लेकिन घोड़ा शेर को देखकर इतना खौफजदा हो जाता है कि सवार के काबू से निकल जाता है और हर तरफ भागता फिरता है। उस शेर को अपनी तरफ आता देखकर
मुसलमानों के घोड़े खौफ से हुनहुनाने लगे और उनमें बेचैनी पैदा हो गई। फारसियों के घोड़े उस शेर से मानूस थे। सिर्फ एक शेर की वजह से मुसलमानों का पिसपा होना कुदरती अमर था, लेकिन हाशिम बिन उतबा ने जान की बाजी लगा दी और अपने घोड़े को एड़ लगाई। उसका रुख शेर की तरफ था। शेर घोड़े को देखकर रुक गया और घोड़े पर हमला करने के लिए अपने जिस्म को सुकेड़ने लगा। हाशिम का घोड़ा डरने लगा और उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। हाशिम घोड़े से कूदकर उतरा और घोड़े को वहां से भगा दिया। खुद तलवार निकालकर शेर के सामने चला गया। शेर जब्त लगाकर उस पर झपटा। हाशिम ने बड़ी तेजी से एक तरफ होकर अपने आप को गिरा दिया। शेर दूसरे हमले के लिए पीछे मुड़ा। इतने में हाशिम उठकर तैयार हो चुका था। अब शेर ने उस पर पहले से ज्यादा शिद्दत से जब्त लगाई। हाशिम ने बड़ी फुर्ती से एक तरफ होकर तलवार का वार किया, जो शेर की अगली टांगों पर सीने के करीब पड़ा। इससे शेर इतना जख्मी हो गया कि जब उसके पांव जमीन पर लगे तो वो संभल ना सका और लुढ़कने लगा। जख्मी शेर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो उठ ही रहा था कि हाशिम ने दौड़कर उसकी गर्दन पर तलवार मारी। गर्दन पूरी तो ना कटी, लेकिन उसका सर ढलक गया। शेर एक बार फिर गिरा। हाशिम ने तलवार से उसका पेट चाक कर दिया और फिर शेर उठने के काबिल ना रहा। उस शाही रसाले के सवारों को तवक्को नहीं थी कि कोई मुसलमान इस कदर दलेर भी हो सकता है कि शेर के सामने आकर उसे तलवार से मार डाले। ये नज़ारा उन्होंने देखा तो इससे उनके लड़ने के जज्बे पर चोट पड़ी। बेशक ये रसाला हर रोज़ अपनी जांबाजी और फारस की सलामती का अहद करता था, लेकिन उसके सवार भी देख रहे थे कि इतनी बड़ी फौज इतनी कम तादाद के मुसलमानों के आगे किस तरह भागी आ रही है। इसका मतलब यही हो सकता था कि मुसलमानों में कोई समझ ना आने वाली ताकत मौजूद है, जो मुसलसल लड़ते और ताक़ुब में आते जा रहे हैं। उनमें थकन के जरा से भी कोई आसार नहीं पाए जाते थे। अब उन्होंने अपने इस खूनखार शेर को एक मुसलमान के हाथों मरते देखा तो उनके दिलों पर मुसलमानों का जो खौफ सवार था वो कई गुना बढ़ गया। ज़हरा बिन हवैया को तवक्को थी कि ये रसाला ताज़ा दम है और उसके सवार भी तजर्बाकार हैं, इसलिए ये बड़ा ही शदीद हमला करेगा। लेकिन रसाले में कोई ऐसी हरकत ना हुई। ज़हरा बिन हवैया ने जब ये देखा तो उसने अपने सवारों को हमले का हुक्म दे दिया। फारसी सवारों की अगली साफ हमला रोकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके एक पहलू से कुछ सवारों ने घबराकर बहरे शेर का रुख किया और घोड़े दौड़ा दिए। उनकी देखा देखी पिछली साफ के सवार भी भाग उठे। फिर ये भेड़ चाल बन गई और पूरे का पूरा रसाला भाग उठा और बहर शेर में दाखिल होकर शहर के दरवाजे बंद कर दिए। बहर शेर बिल्कुल करीब था। ज़हरा बिन हवैया ने आगे बढ़कर शहर का मुहासरा कर लिया। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाबल की तरफ चले गए। अमीर बुर्स बस्ताम ने मुजाहिदीन की पेशकदमी के रास्तों से कुदरती रुकावटें हटा दी थीं। इससे पेशकदमी आसान हो गई थी और तेज भी। इतला के मुताबिक कादसिया के भगोड़े फारसी बाबल के खंडरों में इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिदीन के दस्तों को जो उनके साथ थे मुहासरे की तरतीब में कर लिया और उनसे कहा कि मुहासरे के इशारे पर हल्ला बोल देना है। मुजाहिदीन एहतियात से आगे बढ़ने लगे। जितने आदमी अंदर हैं सब बाहर आ जाएं। करीब जाकर साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान करवाया, लड़ोगे तो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बाहर आकर हथियार डाल दोगे तो तुम्हारी हैसियत और इज्जत बरकरार रहेगी। बाबल के खंडरात वसी और अरीज इलाके पर फैले हुए थे। हर तरफ से ऐलान किए गए, लेकिन कोई जवाब न आया।